This is Dr. Acharya, Devitosh Acharya, and today there was some technical issue because of network issues. I could not be on time. So, hi. I hope all of you must be waiting for the session itself. And today we will be discussing about the part 3, and that is the application of derivatives, clear, and the integration part. Okay. So now this is calculus part 3, and today we will be learning application of derivatives. The second one is integration. I hope the things are visible to you. Okay, I am writing it bigger. So, application of derivatives and integration. These are the two things that we are going to learn today. Okay. You get seated, Anshuman, and what about Smriti? Smriti is not finding a space. Okay. Renu madam, just kindly check whether the things are okay, fine. Huh? Okay. Great. So, as discussed, we would be learning the application of derivatives and integration. These are two separate things. And see, when I am speaking of a differentiation or derivative, it must be understood what a differentiation, that I have taken two classes where we have studied the value of the tan. Okay, from the context of tan to the differentiation values, means from the context of slope to the tiny changes which we call dx or dy. Tiny changes means when we speak of a change, when I say change means from one point to another point, the difference between 2 points. Body is traveling at this speed, okay, and now it has changed its velocity from this to that. Please try to understand. A body is traveling with a velocity. Now it has changed its velocity. When the body changes its velocity, so we speak of the acceleration. Okay, the acceleration or deacceleration, which causes. So if it is a small change, it is a big change, or whatever it is. Clear? So when we are speaking of a small change in x, so when I am writing the value of x2 minus x1, so it is a difference. It is the difference between x2 and x1. So if it is very small, then we call it a small change. When x2 minus x1 is very small, very tiny, it's very बहुत ही छोटा है, तब हम उसको बोलते हैं dx. वैसे ही अगर मैं बोलूंगा y2 minus y1, ये भी डिफरेंशिएशन, पर डिफरेंशियल है. y2 से y1 कितना डिफरेंट है, मतलब वो दोनों में अंतर कितना है. अगर वो बहुत ही छोटा अंतर है तो उसको हम लोग dy बोलते हैं. उसको हम लोग dy बोलते हैं. I was listening, अभी मैं
किसी ने मुझे बताया कि डेल एक्स या डेल वाई बहुत बड़ा चेंज नहीं। जब हम डेल एक्स या डेल वाई लिखते हैं तो वो चेंज ही है, छोटा है, छोटा हो बड़ा हो चेंज ही है। We cannot say it's a big change or something like no, it is a change. Clear? जब हम लिखते हैं, when we are writing, guys, right now I'm having Asutosh and then Swayam Vikas, then Priyanshis, Maya, आदित्य मृत्युंजय राजवंश सिंह, बहुत बड़ा नाम, लड़का छोटा है, एंड देन अंशुमान, स्मृति, अभिषेक, सायंश एंड माय प्रीति पेट सौम्या। ओके, सो वी ऑल हैविंग we all are together and taking class itself, since we are interacting with you, they are sitting beyond the screen. बाकी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, सब सारे बच्चों को, जब हम लोग बात करते हैं डेल के साथ कोई वेरिएबल, डेल एक्स हो, डेल वाई हो, डेल एस हो, कोई भी वेरिएबल, तो वो चेंज है। इफ आई एम राइटिंग डेल एक्स, इसका मतलब है x2 माइनस x1, और x का कोई वैल्यू से x का कोई वैल्यू का अंतर, चेंज इन x, हम इसको बोलते हैं चेंज इन वैल्यूज, change in values of x. We call it change in values of x. If I say del y, then we call it change in any two values of y. Change in any two values of y. Clear? So, कहीं पे कोई अगर सुन रहे हैं आप लोगों को किसी ने अगर बता दिया है ये बड़ा चेंज है, छोटा चेंज है, मत जाइए, चेंज ही होता है। तो छोटा बड़ा या कैसे हम बताएंगे अभी, जब हम लोग लिमिट में हम लोग पढ़ रहे हैं, we have been taught in limit of x tends to 0 del y by del x. Sorry. Okay, तो when I say x tends to 0, x is approaching to 0 but not 0. x is approaching to 0 but not 0. तो 0 के पास नजदीक कहीं एक छोटा वैल्यू है, 0 के पास नजदीक कहीं एक छोटा वैल्यू जो है वो x है। मतलब ये शायद 0.11 हो सकता है बात, या फिर 0.001 हो सकता है, या तो फिर 0.000000001 हो सकता है, पर 0 नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू है, नेग्लिजिबल वैल्यू। लेकिन भैया 0 तो है नहीं, चाहे एक ग्लास में एक बूंद ही सही पानी तो है, हम लोग इसको पूरा खाली नहीं बोल सकते। अगर ग्लास का वॉल्यूम 2 लीटर का होता है और एक बूंद भी पानी होता है तो पानी है, पूरा सूखा तो नहीं है ग्लास। सो यही चीज है। तो जब हम लोग ये बोलते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 dy by dx, इसका ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू कितना होता है dy by dx, इसका पूरा वैल्यू कितना होता है dy by dx। इसका मतलब है ये जो स्मॉल ये जो चेंज है, यहां पे हम लोग इसको स्मॉल बना रहे हैं, हम लोग एक लिमिटिंग वैल्यू दे रहे हैं, मतलब बहुत छोटा, तब जाके ये छोटा बनता है, तब जाके ये छोटा बनता है। आई होप ये मेरा जो पहला क्लास था कैलकुलस का पार्ट 1, वहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि स्लोप में कैसे हम लोग y2 minus y1 और x2 minus x1 हम लोग पाते हैं, जो tan वैल्यू होता है tan थीटा इक्वल्स टू y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1, ये पढ़ाया गया। लेकिन ये स्लोप में था, ये स्लोप में है, मतलब यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में आप इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप निकालिए, ये एक ही रहेगा, इसका स्लोप निकालिए
ये एक ही रहेगा, क्योंकि ये जो बेस के साथ ये जो थीटा कर रहा है, ट्राइंगल में जो थीटा बना रहा है, ये थीटा वैल्यू सब सेम ही रहेंगे। क्लियर? और स्लोप का मतलब है इट इज द स्ट्रेट लाइन, इट इज द स्ट्रेट लाइन विच टचेस अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो जो भी सर्कल आप लीजिए, जितना भी सर्कल लीजिए, वो जब जिस पोजीशन ये सर्कल की आपको देखिए एक समान लीनियर अरेंजमेंट में, ऑर्डर में है, तो ये पॉइंट भी आपका एक लीनियर ऑर्डर में रहेगा। स्लोप छूटते हुए जा रहा है, जिन जिन पॉइंट्स को वो एक ऑर्डर में रहेंगे, इसलिए स्लोप का वैल्यू जो है हर पॉइंट पे समान है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्लोप है। स्ट्रेट लाइन है, स्लोप है। क्लियर? तो अभी हम बताएंगे ये dy बाई dx का कहां आया ना, जब स्लोप में हमने दिखाया कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिखाया कि ये एक कर्व है। इस कर्व में अगर मैं बोलूंगा आपको कर्व का स्लोप निकालना है, तो फिर कर्व के जितने सारे पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट में क्या होगा, देखिए हम लोग ऐसे निकालेंगे तो ये थीटा वैल्यूज आर डिफरेंट, और अगर मैं बोलूंगा ये क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और क्यू और पी में अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालना चाहूंगा तो ऐसा कुछ फिगर आएगा जो एक ट्रायंगल नहीं है। तो यहां पे स्लोप है ही नहीं, तो हम लोग स्लोप निकालेंगे कैसे? ओके, तो लेकिन स्लोप तो निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे ना, अगर मैं सोचूंगा कि ये जो कर्व है ये छोटा छोटा स्लोप को लेके कर्व बना है, छोटा छोटा स्लोप को लेके बना है। छोटा छोटा स्लोप मतलब मैं बोल सकता हूं कि दोनों दो पॉइंट्स, इफ द कर्व इज एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स, दो डॉट्स के बीच में तो स्ट्रेट लाइन होगा ही, ये तो हमने पढ़ा है। दो डॉट्स के बीच स्ट्रेट लाइन जरूर होगा, ये पढ़ा है, भले ही बहुत छोटा है, टेंड्स टू जीरो। अब ये आया, भले ही छोटा है, टेंड्स टू जीरो है, लेकिन पॉइंट 2 से पॉइंट 1 जो डिफरेंस है एकदम छोटा, बारीकी से अगर देखेंगे। ओके, मिनिएचर हम लोग पूरा एकदम काम करेंगे, तो भले ही दोनों पॉइंट में दो छोटा पॉइंट है, लेकिन पॉइंट्स में स्ट्रेट लाइन होता ही। अगर मैं बोलूंगा ये दोनों पॉइंट है और इस दोनों पॉइंट का छोटे छोटे दो पॉइंट्स बहुत बारीकी से नजदीक जो पॉइंट, वो पॉइंट के बीच में अंतर है भैया। अगर दो पॉइंट आपस में लगे हुए हैं तो पॉइंट्स में एक डिफरेंस है ही है, चाहे वो छोटा, लेकिन जीरो है, जीरो कभी हो ही नहीं सकता। दोनों पॉइंट्स में जो डिफरेंस है वो चाहे 0.0000000000001 बार, लेकिन है एक वैल्यू है जो जीरो नहीं है। क्लियर? तो अगर मैं बोलूंगा ये दोनों पॉइंट, ये कर्व के दोनों पॉइंट का अगर मैं निकालूंगा एक छोटा सा, मतलब ये दोनों पॉइंट में मैं थोड़ा ये इमेज और उसको मैग्नीफाई कर रहा हूं, ये दोनों पॉइंट में मुझे ऐसा कुछ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मतलब इसको स्लोप बोलता है, स्लोप मिलेगा, यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भैया ये जो y का वैल्यू, अगर ये छोटा सा स्लोप होता है तो y के डिफरेंस कितना होगा? dy होगा, बहुत छोटा ही होगा। x का डिफरेंस कितना होगा? बहुत ही छोटा होगा, dx होगा। तो यहाँ पे स्लोप हमको कितना मिलेगा? dy by dx। नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में हमको y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मिल रहा है। तो y2 माइनस y1 अगर हम लोग एक छोटा सा वैल्यू लेंगे x टेंड्स टू 0, तो इसी के रेसिप्रोकेशन में अगर हम लोग सोचेंगे y2 माइनस y1 है, छोटा सा चेंज इन y, उसको y2 माइनस y1 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे dy में, और x2 माइनस x1 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे dx में। तो ये थोड़ा रिकैप करवा रहा था मैं आपको। तो dy by dx कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जिन लोगों ने क्लासेस पहले के क्लासेस मैंने किए नहीं है, उन लोगों को समझाने के लिए। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे।
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग ये जानना बहुत जरूरी है कि y का मैक्सिमम वैल्यू या फिर y का मिनिमम वैल्यू एक कर्व में कहां पे आएगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन में जाएंगे। ये भी कुछ करवाया था आप लोगों को, तो फिर भी करा रहा हूं मैं। ये आपका कर्व है, ये हमको एक ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ओके, चलो, तो ये y, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका कर्व। तो लेट अस फाइंड, अभी हम क्या करेंगे इस कर्व में, ये कर्व है, इस कर्व में हम लोग को ढूंढना है कि y का मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट में आएगा, y का मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट में आएगा। ये पॉइंट हो सकता है कि नहीं, x का अच्छा y का मैक्सिमम वैल्यू, अगर एक और ऐसा हो तो y का मैक्सिमम वैल्यू हमको यहां पे मिलेगा, है कि नहीं। तो किसी भी कर्व, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से मतलब समझाना चाहूंगा। ये कर्व हमने देख लिया, एक ही कर्व में हमने y मीन और y मैक्स हमने देख लिया। अभी थोड़ा ये, हाँ, ये कर्व हमने ले लिया, यहां पे y मीन यहां पे रहेगा, है कि नहीं। और देखिए ये जहां पे y मीन रहता है वहां पे टैंजेंट जो इसका स्लोप जो है क्या होगा, इट विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस। अगर पैरेलल टू द x एक्सिस होता है तो थीटा विल बी 0 डिग्री, देन tan थीटा इक्वल्स टू tan 0 डिग्री। उसका मतलब 0 है, जो कि है dy by dx। मैंने आप लोगों को बताया अभी कि जो स्लोप होता है वो dy by dx होता है। तो अगर ये dy by dx है तो आपका स्लोप हो गया 0, आपका स्लोप हो गया 0। तो यहां पे देखिए, तो आंख बंद करके दिमाग में ये भर लीजिए, अगर y का वैल्यू मिनिमम है किसी कर्व में, y का वैल्यू अगर मिनिमम है किसी कर्व में, तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 ही होगा। क्लियर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए, ये दिस वीडियो इज अवेलेबल ऑन फेसबुक लाइव या फिर फेसबुक में अवेलेबल है, इसको आप बार बार देख सकते हैं। हाँ, अभी मैं एक चीज करता हूं कि एक कर्व ऐसा ड्रॉ कर, तो लेट अस फाइंड इस कर्व में, लेट अस फाइंड व्हाट विल बी y मैक्स। y मैक्स मतलब कर्व का जो सबसे ऊपरी भाग या फिर ऊपरी पॉइंट होगा वहीं पे y मैक्सिमम होगा। हम लोग पॉइंट्स को, हम लोग जब कोई कर्व होता है, जब कोई स्ट्रेट लाइन होता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल इमेज होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स और अरेंजमेंट ऑफ द डॉट्स इन एन ऑर्डर। अगर मैं कर्व के ऑर्डर में डॉट्स को अरेंज करूंगा तब कर्व, एक लीनियर वे में अगर डॉट्स को अरेंज करूंगा तो फिर स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं, हर एक डॉट का जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं, है कि नहीं। हर एक डॉट या हर एक पॉइंट उसको हम लोग लोकस बोलते हैं। ओके, सो उसी का एक कोऑर्डिनेट वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो ये जो है यहां पे आप देखिए, x का वैल्यू क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन y का वैल्यू है मैक्सिमम। पिछले जो कर्व था, पिछला कर्व इसके पहले जो मैं किया था जिसमें आपको y मिनिमम निकाला, वहां पे आपको x का वैल्यू पता नहीं है, कहां पे x का कौन से वैल्यू में y मिनिमम हो रहा है ये हमको पता नहीं है। तो लेकिन y मिनिमम अगर होता है तो क्या होता है ना, स्लोप 0 होता है। वैसे ही एग्जैक्टली
y maximum may be slope will be parallel to the x axis. अगर स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है तो थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। उसका मतलब है dy by dx will be slope will be 0। तो यहां पे भी आपका स्लोप 0 आ गया। क्लियर इन बोथ द केसेस। तो अभी मैं आपको बताता हूं, एक ले लेते हैं। If y equals to x square minus 2x plus 1 हुआ तो dy by dx कितना होगा? 2x minus 2 होगा। तो फिर ये जो हमको डेरिवेटिव मिला इस इक्वेशन का, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकाले, इतना मिला। तो मैं पूछूंगा कि यहां पे अगर इस इक्वेशन में इस ऑर्डर में हम लोग डालते जाएंगे वो फंक्शन कर्व, तो यहां पे x का कौन सा ऐसा वैल्यू है, इसी फंक्शन में x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जहां पे y मैक्सिमम, या तो फिर इस रिलेशनशिप में, इस फंक्शन में x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जहां पे y मिनिमम होगा। समझ गए? अभी हमको निकालना है भाई कि कौन सा वैल्यू होगा जिसमें x का, ये फंक्शन अगर हम लोग कैलकुलेट करें हर एक पॉइंट पे यही रिलेशनशिप हम लोग कैलकुलेट करें, मतलब हम लोग क्या करेंगे, x का डिफरेंट मतलब y का जो वैल्यू है, I hope all of you will understand that y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है एक इंडिपेंडेंट या फिर फ्री है वेरिएबल। एक जैसे चेंज होता रहेगा उसी हिसाब से y चेंज होता रहेगा। सो x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसमें y 0 होगा, तो हमने भैया y का वैल्यू सेट कर दिया 0। मतलब अगर y 0 होता है, जैसे हमने पढ़ा कि या तो फिर y मैक्सिमम होता है या तो फिर मिनिमम होता है। y कहां पे 0 होता है? जिस जगह, जिस पॉइंट में y मैक्सिमम होता है या फिर मिनिमम होता है। क्लियर? अगर एक कर्व के बारे में बात करते हैं, अगर ऐसा कोई लंबा सा हम लोग कर्व लेते हैं तो वही होगा, मतलब जो जहां पे भी y मिनिमम होगा वहां पे 0 ही होगा, जहां पे भी y मैक्सिमम होगा वहां पे 0 ही होगा। ओके, तो अभी देखिए ये हमको मिल गया। अभी हम बोल रहे हैं कि y का वैल्यू कहां पे 0 होगा, तो y का वैल्यू जहां पे भी 0 होता है भैया वहां पे, सॉरी y का वैल्यू कहां पे मिनिमम या मैक्सिमम, y का वैल्यू कहां पे मिनिमम या मैक्सिमम होगा, x का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जहां पे y मिनिमम या मैक्सिमम होगा। तो x का तो हमको पता नहीं है, अभी निकालना है, लेकिन हमको ये पता है y जहां पे भी मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो वहां उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन हो या फिर स्लोप हो वो 0 होता है। क्लियर? तो फिर x का वैल्यू कितना हुआ? 1 हो गया। तो अभी हमको ये आउटपुट मिल गया कि x जहां पे 1 होता है वहीं पे y या तो मैक्सिमम होता है, y या तो मिनिमम होता है। क्लियर? y या तो मैक्सिमम होता है या तो y मिनिमम होता है, लेकिन हमको मेटिकुलसली जानना है कि y कहां पे मैक्सिमम होगा और y कहां पे मिनिमम होगा। खाली ऐसे बोल देने से होता नहीं है। x का वैल्यू जहां पे होगा या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ये पता चल गया कि x का वैल्यू जहां पे 1 है इस कर्व के लिए, जहां पे इस कर्व के लिए x का वैल्यू जहां पे 1 होगा वहां पे y आपका मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम। तो पता चलाते हैं भैया कहां पे एग्जैक्टली मिनिमम होता है और एग्जैक्टली कहां पे मैक्सिमम होता है।
क्लियर? चलो चलो भैया, एक y इक्वल्स टू वही वाला जो करवाया था मैंने आपको, -5/2 x स्क्वायर, ऐसा कुछ था ना बेटा? हाँ, और फिर प्लस 16x माइनस 5। ओके, तो dy by dx निकालो इसका। सर 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 2x प्लस 6x माइनस 5x सर 5x 3x स्क्वायर माइनस 5x और ये 5x प्लस 16 प्लस 16। ओके, तो ये जो हमको अभी मिला है, अच्छा इसको थोड़ा मैं अच्छे से करवाने के लिए मैं सोच रहा हूं कुछ ऐसा वैल्यू लूं जहां पे हमको मिले। तो इसका वैल्यू हम लोग अच्छा चलो अच्छा ये 3x स्क्वायर होगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये तो x स्क्वायर, हाँ ये x स्क्वायर हो जाएगा भैया। कितना होगा? x स्क्वायर होगा। ओके, तो इसको 2x ले लेते हैं, इसको कितना लेंगे? इसको 2x लेते हैं। अच्छा, तो ये 3x प्लस प्लस 16 प्लस 16 वो ये 2x। हाँ, इसको 2x ले लिया मैंने, तो इसको 2 कर देखता हूं मैं। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर x लेता हूं तो ये x माइनस 3 होगा, माइनस 2 लेने से ये होगा x माइनस 2। सही हुआ? हमें करेक्ट? हाँ, हो गया। ये x कॉमन किया ना, x माइनस 1 होगा 2 लेना, x माइनस 1 होगा। अच्छा 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 अच्छा, ये x माइनस 1। तो अच्छा, इसको करते हैं सर 6 सर 2x लेता हूं, चलो इसको 4 करता हूं। ओके, तो इसको अगर 4x करते हैं, हो गया? क्लियर हुआ? सही? हाँ, तो अभी हमको x माइनस 2 और x माइनस 3 मिला है कि नहीं? x माइनस 2 और x माइनस 3 मिला। क्लियर? तो या तो फिर x का वैल्यू 2 है, या तो फिर x का वैल्यू जो है 3 है कि नहीं? अगर मैं बता रहा हूं dy by dx इक्वल्स टू x माइनस 2, तो ये जो है 0 हो जाएगा। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 है कि नहीं? x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 3। तो हम लोग को इधर x का वैल्यू 2 मिलेगा या तो फिर x का वैल्यू 3 मिल रहा है। क्लियर? चलो, अभी कहां पे y का वैल्यू, कहां पे x का 2 वैल्यू हम लोगों को मिल गया है, तो कहां पे वो मैक्सिमम होता है और कहां पे मिनिमम होता है वो अभी देखते हैं। क्लियर? 2 पे मैक्सिमम होगा y का, या तो फिर मतलब x इक्वल्स टू 2 में y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, x इक्वल्स टू 3 में y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा।
चलो बुलावा आया है, मैथमेटिक्स ने बुलाया है। चलो अभी मिटाते हैं इसको। अच्छा ये क्या था, फाइनली हम लोगों को वो कितना मिला होगा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x सर 5/2 5/2 स्क्वायर प्लस 2x That's 4x. 4x। तो इसका dy बाई dx कितना दिख रहा भैया बताओ आप? x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 निकला। अभी मैं बोलूंगा कि डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, मतलब d ऑफ dy बाई dx डिवाइडेड बाई dx, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। क्लियर? देखो भैया जब हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं यहां पे भी उसने इंडिकेट कर दिया कि y चेंज होगा अगर x चेंज होता है, यहाँ पे y चेंज होगा अगर x चेंज होता है, इसलिए स्क्वायर लिखा है नीचे का। x वेरीज फ्री वेरिएबल या फिर इंडिपेंडेंट इक्वल्स टू कितना मिलेगा इसका, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। चलो भैया अभी हम लोग डालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 2x माइनस 5 में पहले हमने लिया, हमको मिला था x का वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ। x का वैल्यू अगर 2 होता है तो 2x कितना हुआ, 4 माइनस 5 कितना हुआ, -1 हुआ। अगर x का वैल्यू 3 होता है तो 6 माइनस 5 प्लस 1, तो हमको मिला +1 और -1, हमको मिला x का वैल्यू +1 और -1। तो जैसे हमने बताया था अगर वैल्यू नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम होगा y, अगर वैल्यू पॉजिटिव होता है तो मिनिमम होगा y। तो यहां पे x का वैल्यू अगर -1 है, x का वैल्यू नेगेटिव है, तो वहां पे y कितना होगा, मैक्सिमम। फॉर x इक्वल्स टू 2, सॉरी फॉर x इक्वल्स टू 2, जब x का वैल्यू 2 होगा तब y का वैल्यू मैक्स होगा, जब x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू मिन होगा। क्लियर? अंडरस्टूड? पक्का? लॉक किया जाए? चलिए तो यहां पे y मैक्स है, यहां पे y मीन है। क्लियर? अंडरस्टूड? आशुतोष बाबू अच्छा एक काम करो भैया, इसको आप लोग जब देख रहे हो इस पे अगर कोई प्रॉब्लम आपको आता है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया था 9437231160, ये मेरा मोबाइल नंबर है जहां पे आप लोग व्हाट्सएप में अपना क्वेरीज, अपना प्रॉब्लम्स आप लोग नहीं, आप लोग बस खुद टीचर है, व्हाट्सएप की क्या जरूरत है, आप लोगों के पास टीचर खुद है तो आप लोगों को व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो मुझसे दूर है और जो मुझसे रिमोटली कांटेक्ट करना चाहते हैं। आप बच्चे तो मेरे साथ डायरेक्ट रिमोटली की बात नहीं है, अभी इसके बाद इस सेशन के बाद हम बैठ सकते हैं। चलो हाँ, तो ये हो गया बच्चों, अभी यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अभी एक बहुत ही मजेदार कंटेंट है जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। अभी माया मुझे हेल्प करेगा, इंटीग्रेशन का सारा जो फॉर्मूला है वो माया के पास होगा।
है सर कुछ कुछ है। कुछ कुछ है, जो जितना कुछ कुछ है उतना कुछ कुछ पेश करना है। ओके ओके, सो हमने जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ाया जैसे कि भैया ये जो डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन है तो वो क्या है, इट्स ये जो है ये छोटा डिफरेंस। ओके सो ये अच्छा जो डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन हमने लिया था तो ये डिवीजन था, मतलब y अपन x या फिर dy डिवाइडेड बाय dx है कि नहीं। तो डिफरेंशिएशन जैसे मैंने बोला कि एक बड़ा सा टुकड़ा है जिसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग निकालेंगे। ओके तो बड़ा सा टुकड़ा है उसका छोटा सा टुकड़ा, अगर ये x है, ये अगर x है तो इसका जो छोटा वैल्यू होगा dx, ये डिफरेंशिएशन है। तो हम लोग क्या कर रहे थे ना, पूरा बड़े को तोड़ के हम लोग छोटा निकाल रहे थे, बड़े को तोड़ के हम लोग छोटा निकाल रहे थे और बारीकी से एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को कैलकुलेट करके पूरा बड़ा जो पीस है उसका कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे। प्रियांशु बाबू आप सो जाओ। ओके तो हाँ, तो मैं बताऊंगा आपको एक बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं। और इंटीग्रेशन देखिए, डेरिवेटिव हम हर एक फंक्शन का हो सकता है लेकिन इंटीग्रेशन हर फंक्शन का नहीं हो सकता। मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। मैं बोलूंगा आपको ये मेरा शर्ट है, स्काई ब्लू का ये जो टी शर्ट मैंने पहना, इसको मैं तोड़ के छोटा छोटा थ्रेड निकाल सकता हूं, छोटा छोटा थ्रेड निकाल सकता हूं। अगर मैं बोलूंगा ये जो पूरा शर्ट मेरा है अगर x वैल्यू का है तो हर एक छोटा छोटा थ्रेड मैं अगर निकालता हूं मैं dx हो सकता है, लेकिन वो छोटा छोटा थ्रेड को जोड़ के मैं शर्ट नहीं बना सकता। मैं एक पीस ऑफ क्लॉथ बना सकता जिससे शर्ट बनेगी, क्योंकि हर एक छोटा पीस मेरा अलग अलग है, अलग अलग है। क्लियर? तो छोटा छोटा पीस लेके मैं क्लॉथ बना सकता हूं। देखिए ये अगर मैं ये मेरा शर्ट को एक फंक्शन मानता हूं, यहां पे इंटीग्रेशन काम नहीं दे रहा, लेकिन ये कपड़ा जो है कपड़ा बन सकता है कि नहीं। सो इंटीग्रेशन क्या चीज है, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। जैसे मैंने बोला आपको कि इंटीग्रेशन हर फंक्शन का नहीं हो पाता। ओके वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में, वी आर लर्निंग अबाउट द मैथमेटिकल टूल्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। ये बारीकी से मैं आपको इंटीग्रेशन पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, जितना जरूरत है आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल, रिमेंबर इट इज फिजिक्स नॉट फिजिक्स, इट इज फिजिक्स। सो फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने के लिए जितना इंटीग्रेशन की जरूरत है वो हमने पढ़ा है। चलो तो जैसे बोला ये आपका तोड़ने वाला काम जो था वो डेरिवेटिव था, डिफरेंशिएशन था। जोड़ने वाला जो काम है वो इंटीग्रेशन। तोड़ने का मतलब अगर सीरीज ऑफ सब्ट्रैक्शन है तो फिर जोड़ने का मतलब सीरीज ऑफ एडिशन है। सीरीज ऑफ एडिशन बोले तो सीरीज ऑफ एडिशन बोले तो विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन multiplication. Multiplication is series of addition and series of subtraction is division. तो dy by dx है, डिवीजन हमने किया तो उस डिवीजन में हमने फिर पढ़ा कि वो जो होता था सीरीज ऑफ सब्ट्रैक्शन होता था और वही होता था डिफरेंशिएशन। सीरीज ऑफ एडिशन जो होता है मतलब वहां यहां पे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन हो के फिर हम जोड़े। तो भैया ये ले लो, आप करते हैं y into dx। हमने क्या किया यहां पे, हमने क्या किया यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके तो y का वैल्यू हम लोग कहां से चेक करेंगे, कहां से, x इक्वल्स टू 0 टू n, x इक्वल्स टू 0 टू n। तो y डॉट dx, y डॉट dx। एक चीज मैं बता देता हूं आपको,
0 से 1 तक n तक हमको ऐड करना है। ओके, सो एक चीज बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं, ये आप लोग लिख लीजिए पहले। इससे पहले मैं इंटीग्रेशन का एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगा जिससे आपको इंटीग्रेशन समझने में बहुत इजी हो जाए। ओके चलो, ये जो छोटा सा किस्सा है, Sir, what is n? व्हाट इज N. n में भी एनी नंबर, n मतलब कोई लिमिट, जैसे 0 तो 0 का जो है रिप्रेजेंटेशन मतलब बेस लिमिट है 0, तो n में भी एनी, n इज अ वेरिएबल जहां पे हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अभी मैं करा देता हूं, मैं आपको कराता हूं, आप बच्चों को याद होगा मैंने कराया था आपको जब आप लोग शुरू में 11th में आए थे, तो मैं बताया था अगर ये x है ये पूरा, Yes, sir. तो ये छोटा जो डिफरेंस है इसको अगर मैं dx लेता हूं, Yes, sir. ओके, और बाकी देखिए ये x पॉइंट में p एक पॉइंट है और q एक पॉइंट है, p एक पॉइंट है q एक पॉइंट है, और ये जो पूरा वैल्यू है ये पूरा वैल्यू x पे या तो फिर ये पूरा वैल्यू जो है वो a पे है। ये अगर मैं x लेता हूं तो इसको x यहां पे लिखता हूं, ओके, ये पूरा वैल्यू x है। तो अगर मैं dx को इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर ये फाइनल वैल्यू x तक, तो मुझे ये पूरा पीस मिल जाएगा। Yes, sir. ओके, मतलब dx कहां तक dx ऐड करूंगा ना x तक, तब मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अगर dx को मैं 0 से p तक ऐड करूंगा तो फिर मुझे ये पोर्शन मिलेगा, Yes. ये पोर्शन मिलेगा। अगर dx को मैं कैलकुलेट करूंगा q तक, सॉरी इंटीग्रेट करूंगा q तक, तो मुझे ये पोर्शन मिलेगा। अगर मैं dx को लोअर लिमिट p और अपर लिमिट q में डालूं तो मुझे ये छोटा पीस मिलेगा, Yes, sir. Yes. p से शुरू होगा q पे खत्म होगा, तो ये मिलेगा। या तो फिर मैं इसको q रखता हूं लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो x रखता हूं, ओके, तो यहां से ये लिमिट तक मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग, तो इतना पीस मिलेगा। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं छोटा सा वैल्यू को ऐड कर रहा हूं, मुझे जितना चाहिए 1 से 10 तक या फिर 7 से 20 तक या फिर 14 से 34 तक, जो मुझे चाहिए मैं अपना लोअर लिमिट सेट कर रहा हूं और अपर लिमिट सेट कर रहा हूं, उसी लिमिट के अंदर मैं यूनिटरी वैल्यूज को जोड़ता हूं। ओके, तो यही है इंटीग्रेशन। क्लियर? अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो y इंटू dx, ओके, 0 टू n, x इक्वल्स टू 0 टू n। आपको मैंने बताया था कि x जो है वो आपका फ्री वेरिएबल या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वैल्यू कौन करेगा, यहां पे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि x का कौन सा वैल्यू, सॉरी कौन सा वैल्यू हम लोग लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट में होगा, तो वो x ही होगा। तो क्या होगा, क्यों x होगा, क्योंकि ये y का वैल्यू जो है फंक्शन ऑफ x है, y का वैल्यू जो है फंक्शन ऑफ x है। अगर मैं बोलूंगा y इक्वल्स टू x टू द पावर n, तो फिर मैं लिख सकता हूं x टू द पावर n इनटू dx का इंटीग्रेशन निकालो 0 से n तक। हाँ, और एक मैं बता देता हूं, यहां पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए कि यहां पे आप सोच रहे होंगे शायद कि सर ने तो लिमिट दे दिया, मतलब 0 से n तक, बहुत सारा कुछ इंटीग्रेशन होता है जहां पे लिमिट लिखा नहीं होता। ओके, तो वो क्या चीज है, ये 0 से n तक मैं जब देता हूं वो आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, मतलब यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं एक वैल्यू, इसके अंदर मुझे यहां से लेकर यहां तक ऐड करना है, यहां से लेकर यहां तक ऐड करना है। लॉक किया जाए? ओके, अगर मैं आपको बोलता हूं कि कोई वैल्यू दिया नहीं गया है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मैंने कोई वैल्यू दिया है, तो ये आपका इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो इसको हम लोग लिखते हैं n इनटू
पता है आपको? Yes, sir. बताइए। Sir, n into x to the power n plus 1 n plus 1 divided by n divided by n plus 1 plus c constant. कांस्टेंट। ये c क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो अपर लिमिट या लोअर लिमिट हमने सेट नहीं किया है। Yes. ओके, तो हेलो नहीं, x to the power n plus 1 divided by n plus 1 n नहीं होगा। तो ये जो है यहाँ पे जब c हम लोग डाल रहे हैं तो जो छोटे छोटे मतलब वैल्यूज या इंडेफिनेट जो वैल्यूज हम लोग को मिल लेगा तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं। तो पर ये बहुत जरूरी है कि आप लोग जानो कि x to the power n into dx equals to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 जो है प्लस c जो है ये यहाँ पे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपको यूज करते हैं। अगर डेफिनाइट करते हैं लोग तो फिर मैं बोलूंगा x dx। ओके, तो 0 से n मतलब ये कितना हो जाएगा मुझे n माइनस 0 हो जाएगा। मैंने पूरा किया है। ओके, टू dx ये वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे ये आपको ये वैल्यूज डिफाइंड, ये हमको पता है 1 से लेकर 0 तक जो छोटा पीस हमको पता है वो डिफाइंड है। यहाँ पे इंडेफिनाइट है, डिफाइंड नहीं है, हमको एग्जैक्ट वैल्यूज पता नहीं है, इसलिए वी आर एडिंग दिस कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर? तो ये जो है इंटीग्रेशन, इसके बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन में जो हम लोग मतलब शायद मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग करना चाहिए। ओके, सो y इक्वल्स टू हम लोग लेते हैं क्या क्या सब आइडेंटिटी से बेटा बता इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का आइडेंटिटी बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं जो हम लोग मतलब करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं कैसे, वो आइडेंटिटीज बाद में करूंगा मैं। तो यहाँ पे बेटा देखो, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग देखो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ज्योमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं। ओके, ये कर्व है, यहाँ पे मुझे डेरिवेटिव सॉरी स्लोप निकालना था, ये p होता था, ये q होता था, ये मिल जाता था मुझे, है कि नहीं? ये मिल जाता था। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपका x2 और ये y2 और यहाँ पे x1 और ये y1, तो ये p और q ये जो डिफरेंस है, ये जो स्लोप है। ओके, इसको हम लोग ऐसे डॉटेड करके ड्रॉ करते थे ट्रायंगल, जहां पे हम लोग थीटा लेते थे, ये आपका x कंपोनेंट हो गया, ये उसका y कंपोनेंट हो गया, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में हम लोग tan थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा ना, ये ये आपका y2 माइनस y1 है और ये x2 माइनस x1 है, तो tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये हमको मिल जाता है। छोटा सा पीस हमको मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं बेटा, देखो आपको ये इसमें चलो तो ये देखो यहाँ पे अगर हर एक पॉइंट में, अगर हर एक 2 पॉइंट्स में, जैसे मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट्स, हर 2 पॉइंट्स मतलब बारीक छोटे छोटे 2 पॉइंट्स, तो ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों ये आपका dx है, ये आपका dx है। तो अगर मैं इस x को dx में डिवाइड करूं, देखिए x को dx में डिवाइड करूं, ओके, तो फिर यहाँ पे और यहाँ पे मैं बोलूंगा ये जो डिफरेंस है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, y3 y4 y5 y6, हर एक पॉइंट का मैं डॉटेड करके फिर ये yn तक निकालूंगा। क्लियर? अगर मुझे पूछा जाएगा इंटीग्रेशन का मतलब, अगर मुझे पूछा जाएगा ये नहीं पता है
ये छोटा सा, एक छोटा सा रेक्टेंगल है, छोटा सा क्या है रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, तो मैं बोलूंगा y इंटू dx या फिर y1 इंटू dx। यहाँ पे x का वैल्यू हर एक यूनिट में dx ही रहेगा, फिर y2 इंटू dx, फिर y3 इंटू dx, फिर y4 इंटू dx। ये पूरा क्या है, ये y है, यहाँ पे y1 y2 y3 y4, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं y1 y2 y3 y4 y5 y6 पूरा ना लिख के मैं बोलता हूं ये y इंटू dx। y का वैल्यू कितना होगा y, तो ये dx का यूनिटरी वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं, ओके रिपीटेटिव एडिशन करते जाएंगे, तो ये हमको मिल गया, क्लियर है। लेकिन ये c का जो हम लोग रहा है, हाँ इसमें क्या है ना बेटा, इसको तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर ये छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स हैं पैचेस हैं, इनको मैं समेशन भी कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, समेशन भी लिख सकता हूं, यहां से 0 से n तक वैल्यू दे सकता हूं, लेकिन समेशन इसमें पॉसिबल है इसीलिए क्योंकि एक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या फिर ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेस एक ऑर्डर में होगा, एक सीरीज में होगा, है कि नहीं, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या फिर ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेस एक सीरीज में होगा, लेकिन कर्व में नहीं होता है। अगर मैं कर्व ड्रॉ करता हूं, अगर मैं कर्व ड्रॉ करता और इसको मैं बोलूंगा आपको निकालिए, तो वही पट्टा होगा, वही पट्टा हम लोग लेंगे, छोटा छोटा पट्टा जहां पे x का वैल्यू dx होगा, dx होगा, हर जगह dx ही होगा, यहाँ पे y1, यहाँ पे y2, यहाँ पे y3, यहाँ पे y4, यहाँ पे y5, ऐसे ऐसे करके हम लोग yn तक चलेंगे। लेकिन भैया देखो इस जगह में ये सारे चीजें जो है ना ये छूट जाएंगे, है कि नहीं, ये छोटे छोटे एरियाज छूट जाएंगे, तो हम लोगों को एक एग्जैक्ट इसको अगर एडिशन करके हम लोग पूरा कर्व का जो एरिया हम लोग निकालना चाहेंगे, हाँ वहां पे हम लोग स्लोप निकालते थे, कहां पे डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन में स्लोप निकालते थे, यहाँ पे हम लोग एरिया निकालते हैं, ये डिफरेंस आप लोग थोड़ा याद करिए, तो वहां पे हम लोग स्लोप निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग एरिया निकालते हैं, क्योंकि इसका पूरा एरिया अगर मुझे पाना है, इस इमेज का पूरा एरिया पाना है, तो छोटा छोटा एरिया को मैं ऐड करता जाऊंगा तो पूरा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं छोटा छोटा रेक्टेंगल को ऐड करता जाऊंगा, अगर छोटा छोटा रेक्टेंगल को ऐड करता जाऊंगा, आप लोग देखिए तो ये छोटे छोटे एरिया, वहां पे मुझे क्या मिलते थे ना, रेक्टेंगल मिलते थे और फिर स्लोप में अगर ये सीधा लाइन था और ट्रायंगल मिलते थे, तो हम लोग जो एडिशन करते थे वो ट्रायंगल का एक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होता था या फिर रेक्टेंगल का एक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होता था। लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं पे ये मिल रहा है, कहीं पे ये मिल रहा है कि नहीं, तो ये सब these are all geometric objects या फिर फिगर्स और ज्योमेट्रिक फिगर्स, तो इनका जो वैल्यू है यहाँ पे जो छोटा छोटा छूट के रखा है छोटा छोटा, तो इसमें क्या होता है ना, बारीकी से हर डॉट को हमको कैलकुलेट करना है, हर एक डॉट को हम लोग कैलकुलेट करना है, हर एक छोटा छोटा पोर्शन को हम लोग को कैलकुलेट करना है, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं, जिसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। तो ये हमको y इक्वल्स टू हम लोगों को y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x मिला, तो x का फंक्शन जो भी इक्वेशन होगा, जो भी हम लोग f(x) का वैल्यू जो भी होगा, f(x) का वैल्यू अगर होता है x² - x + 1, x² - x + 1, तो फिर हम लोगों को इंटीग्रेट करना है क्या, मतलब y इंटू dx को इंटीग्रेट करना है, तो y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, f(x) इंटू dx, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x² - x + 1, ओके, निकालेंगे इंटीग्रेशन,
ओके, ये तो इंडेफिनिट है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इंडिविजुअली हर एक वैल्यू का इंटीग्रेशन हमको निकालना होगा। हर एक वैल्यू का इंटीग्रेशन हम लोगों को निकालना होगा। मतलब x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स और फिर 1 इंटू डी एक्स। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन में ये होता था कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होता था, अगर हमको 1 मिल जाता था, ओके, अगर हमको 1 मिल जाता था, आप लोग रिकॉर्ड कीजिए वो वाला पढ़ाई जो हमने करवाया था आपको इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन में। पहला कंडीशन मेरा था अगर y का वैल्यू 1 होता है तो 1 into dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, मतलब dx का इंटीग्रेशन होगा, है कि नहीं? क्लियर? तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x ही होगा। dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x। तो यहां पे x to the power 0 into dx कर देते हैं, 1 हो गया। कितना हुआ, x to the power 0 plus 1 divided by 0 plus 1 plus c। तो कितना हुआ, x plus c हुआ। क्लियर? x plus c। तो अभी x into dx अगर करेंगे वही होगा x to the power 1 plus 1 divided by 1 plus 1 equal to x square by 2। क्लियर? तो इसका इससे पहले मैंने आपको जो एक फंक्शन दिया था या फिर एक जो इक्वेशन दिया था उसका आप लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, है कि नहीं? y equals to x minus x plus 1 ये निकाल सकते हैं। तो अभी तो वक्त हो गया, नेक्स्ट क्लास मैं अरेंज करूंगा पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर के लिए। हम लोग क्योंकि न्यूमेरिकल्स कर नहीं सके आज, तो I would like to schedule it in the next class in the coming Sunday we will fix a class जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और बाकी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का मिला के हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसको रखेंगे। और बाकी एक बहुत बढ़िया चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा, या वीडियो इज अवेलेबल ऑन फेसबुक। उसमें हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में जानेंगे। ओके, तो ये बहुत जरूरी है, हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे केमिस्ट्री में, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में जानेंगे। और वेरी सून आई एम कमिंग विद सम सब्जेक्ट्स ऑफ बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। सो उसका जो हम लोग एक नोमेनक्लेचर, प्रोसेस नोमेनक्लेचर ऑफ बॉटनी का नोमेनक्लेचर को हम लोग लेके आएंगे, ज़ूलॉजी का नोमेनक्लेचर को भी लेके आएंगे, उसी पे बात करेंगे। एंड आई एम प्लानिंग फॉर very nice class of English diction, English, okay। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उड़ीसा में, चलिए उड़ीसा में, पूरे इंडिया में बोलते हैं इंग्लिश, कोई बोलता है, ये देहाती लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश S और H। तो फोन्स को लेके हम लोग बात करेंगे, तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होगा वो फोनेटिक्स होगा, फोनेटिक्स नहीं, फोनेटिक्स, ओके, PH। तो ये जो मैं लिप्स ज्वाइन करके बात करता हूँ, या फिर दांतों को लेके मैं शब्द बनाता हूँ, मुंह के कौन से हिस्से से सब शब्द बनते हैं और कौन कौन सा शब्द बनता है इंग्लिश में, फोन्स के ऊपर हम लोग जानेंगे। एंड दैट साइंस इज फोनेटिक्स ऑफ लिटरेचर। सो आई एम saying bye for today, but I hope all of you might have enjoyed. You can text me to the WhatsApp that I have mentioned if any issues that you're finding, if any problems that you're finding. But recall, this is the Cordillere, okay, where you are attending or you are getting online live classes of Facebook. So Cordillere has taken up a challenge to make Facebook a learning platform,
जहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब बॉटनी, जूलॉजी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, तो ये साइंस का सब्जेक्ट है। उसके साथ भी हम लोग कंप्यूटर साइंस का भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, मतलब प्रोग्रामिंग का जो टेक्निक्स है, प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज हम लोग जानेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी चला कारवां आगे जाएगा, बारीकी से हम लोग एक एक बारी बारी करके हम लोग पढ़ते जाएंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको आगे बताते जाएंगे। लेकिन ये सुनिए आप लोग, मैं बता देता हूँ, कौटिल्य का यहाँ पे उड़ीसा में कोई ब्रांच नहीं है। अगर कोई इस फेस कोई लिखता है आपको कौटिल्य, मैं आपको बताता हूँ वो कौटिल्य नहीं है। कौटिल्य में जो हमारा लोगो है, कौटिल्य मतलब चाणक्य जी, तो वो जो लोगो है और जो कौटिल्य है वो दैट इज आवर लोगो। मतलब आपको जो ये हमारे ये जो फेसबुक में जो आप दिखेगा आपको जितने पोस्टर्स पर ये जो लोगो है दैट इज लोगो ऑफ कौटिल्य। ये कोई बताता है, मतलब बहुत सुनने में आया, किसी ने बता दिया कि कौटिल्य से आया है, दोज आर ऑल डुप्लीकेट कौटिल्य। So you record it that the Kautilya, it is not Kautilya, it is the Kautilya, and we are having the head office at Block B, West Vinod Nagar, Patparganj, New Delhi, 110092. We are having the campus at Odisha, Bhubaneswar. It's plot number 46, InfoCity Avenue or InfoCity Road, Patia, Bhubaneswar 24. You can call us to 1800-890-3760. It's a toll-free number. Again repeating, 1800-890-3760. And I'm coming to the website where you can visit us, where you can find us, and that is www.thekautilya.com. That is www.thekoutilya.com. Okay, so catch us on this physically. You can come and catch me, catch my teachers, catch my students at our campus, Bhubaneswar campus. And this is for those who are staying at Delhi, so you can visit to our Delhi office to know anything about. Okay. And apart from that, you can call us in toll free. Clear? So I'm signing off for today, sir. We'll come in the next class with a precise integration. I didn't proceed today for integration and its identities because I wanted a complete class to do and to solve problems. So love you all. God bless you all. I pray the Almighty Jagannath to bless you all. Maintain safe distance, 6 meters from each other, and always sanitize your hands. Okay, use mask. Without mask, never go out of your home. Even if possible, you try staying at home with masks. Okay, bye bye. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Most welcome. Most welcome.